ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट कहाँ तक हुआ था? क्षितिज बोलो, लास्ट कहाँ तक हुआ था? हाइब्रिडाइजेशन। क्या सर? लास्ट दिन कहाँ तक हुआ था? हाइब्रिडाइजेशन तक हुआ था। SP3। हाँ सर, फिर बढ़ा दिए थे। उसके बाद मैंने बोला था कि जितना BCPR थ्योरी में स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन किया, उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आप घर में ट्राई किया? हाँ नहीं सर, ट्राई किया किया। था। किया था। हाँ, थोड़ा किया था। थोड़ा किया था। अच्छा, किया था से थोड़ा किया था। बाकी लोग সমুদ্রে ট্রাই করেছিল আগের দিন যেগুলো বলেছিলাম। সে ট্রাই করেছিলাম এক দুটো আর কি। এক দুটো হয়নি, এটা তো হতেই পারে না। गुंजन ट्राई किए थे? हाँ सर। हुआ था? सब हुआ? बस एक हुआ था। एक हुआ था? नहीं, ठीक ठाक ट्राई नहीं हुआ इसका मतलब। अगर ट्राई तुम लोग ठीक से करते तो सब हो जाता, एक भी नहीं छूटता। नहीं हुआ ठीक से ट्राई, तो ठीक है। आज एक काम करेंगे, कुछ ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पे जाएंगे। तो द फर्स्ट थिंग, स्क्रीन इज विजिबल कंप्लीटली? स्क्रीन दिख रहा है पूरा? हाँ सर। ओके। some other examples of other examples of uh, sp3, sp2 and sp hybridization. इसमें दिखाएंगे, हाइड्रोकार्बन पे दिखाएंगे। ओके, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? द कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, रिमेंबर वन थिंग, दैट इज ये इथेन है। दिस इज व्हाट? दिस इज इथेन। दिस इज इथीन and this is इथाइन। अभी देखो, इथेन में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, बस सिंगल बॉन्ड है। इथीन में एक डबल बॉन्ड है, इथाइन में एक ट्रिपल बॉन्ड है। सो नाउ ऑल द कार्बन्स ऑफ इथेन आर sp3। कीप दैट इन माइंड। जब भी इथेन से इथीन में जाएंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। फिर जब इथेन से इथाइन में जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा sp। ओके, अंडरस्टूड? अभी इन तीनों का ऑर्बिटल डायग्राम हमको बना के देखना है कि ये कैसा दिखता है। ओके, पहले इथेन वाला ही देख लो। अच्छा, वन बाय वन। वन बाय वन। पहले ये वाला देखते हैं, इथेन। देखो, दो कार्बन है, दोनों के बीच क्या है?
एक सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे एक एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। ये जो स्फेरिकल देख रहे हो ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल है। सो ये हो गया एक सिग्मा बॉन्ड और ये है हाइड्रोजन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड है वो वाले सिग्मा बॉन्ड। तो देखो आया समझ में? বুঝতে পারলে সবাই? সৌম্যদীপ, সাগ্নিক, স্যার আরেকবার একটু এক্সপ্লেন করতে পারবে? কোন জায়গাটা বলো? স্যার এই সিগমা বন্ডটা বুঝলাম না। সিগমা বন্ডটা আচ্ছা খেয়াল আছে আগের দিন sp3 হাইব্রিডাইজেশন লোডটা কেমন ছিল? এদিকে দেখো, এরকম দেখতে ছিল তো। sp3 হাইব্রিডাইজেশন এরকম ছিল দেখতে লাস্ট দিন, মনে আছে? হ্যাঁ ওটাই তো আমি এঁকেছি, দেখো ভালো করে, খালি এরকম ভাবে এঁকেছি। আচ্ছা হ্যাঁ 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 দেখা যাচ্ছে। তাই না? হ্যাঁ Similarly, there is another carbon on this side. এবারে দুটো sp3 লোভ একসঙ্গে মিলে গেছে এখানে, so that's আচ্ছা why a এখানে sigma মাঝখানটা bond কি has been বলবো? created. আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। Okay. Similarly, হাইড্রোজেনের যে s অরবিটাল গুলো আছে they will form sigma bond through the other lobes of the sp3 hybridized orbital. Done. হ্যাঁ স্যার। বোঝা গেল? Next is ethene. Ethene is sp2. So there is carbon, another carbon, and there is a bond in between them. Okay. Now, two lobes. If you can remember, the sp2 was something like that. মনে পড়ে? sp2 sp2 was something like that. Okay, so that is what I have drawn here, and also there are two hydrogens attached with two lobes of each sp2 hybridized orbital of carbon. So this এটা তো is basically হাইড্রোজেনের এস অরবিটাল না? s orbital of hydrogen. হ্যাঁ বলো, আবার বলো। যেগুলো ওই যে লোবসের লাস্টে গিয়ে অ্যাটাচ হলো হাইড্রোজেনের, ওটা তো এস অরবিটাল হাইড্রোজেনের। s orbital, হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ Okay, now there is only one pi bond. So pi bond will be formed by parallel overlap or side on overlap of the p orbital. So this is unhybridized p orbital. These two are okay. So they will join together. So they will join together like this. And they will form a pi bond. They will overlap and form a pi bond. So this was basically ethene. Now we will go towards ethine. In case of ethine, the hybridization is sp. So that's why this is carbon and this is its sp, hybridized orbital. This is another carbon. This is its sp hybridized orbital. Done. Now one sigma bond is formed and two hydrogens are there on the two opposite sides connected through their s orbital. Done. The main skeleton is done. Now there are two pi bonds. So how can we show the two pi bonds? One, simply like this.
One simply like this. Shown. Another unhybridized p orbital. Another unhybridized p orbital. They are parallel, so they will join, or they will overlap like this. Okay, understood? So this is the structure of ethine. Everyone understood? বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। Okay. Now we will move towards the molecular orbital theory. The molecular orbital theory. Okay. See, it's a new concept, and it's a very important concept to understand the bonding in molecules. तो हम लोग लास्ट में क्या पढ़े थे? एटॉमिक ऑर्बिटल. Atomic orbital. Atomic orbital is for the atoms. Okay. When you consider a molecule, you can no longer consider an atomic orbital. You have to consider a molecular orbital. So molecular orbital कैसे बनेगा? So atomic orbital will combine and they will form a molecular orbital. Okay. कैसे कैसे? The atomic orbital of similar size, shape, and energy will form molecular orbital. Molecular orbital. Okay, so they will form molecular orbital. Okay. See, another point is that the total number of atomic orbital, or rather the total number of molecular orbital formed will be equal to the number of atomic orbital. तो इसका मतलब जितना सारा एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा. मतलब अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ही बनेगा एट एनी कॉस्ट. ठीक है. आया समझ में? हाँ सर. अभी देखो, हमने दो टाइप के ऑर्बिटल ओवरलैप पढ़े थे, राइट? क्या क्या? एक था इन फेज ओवरलैप, दूसरा था आउट ऑफ फेज ओवरलैप, राइट? तो अभी दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होगा वो इन फेज ओवरलैप में कंबाइन हो सकते हैं, वो आउट ऑफ फेज ओवरलैप में कंबाइन हो सकते हैं.
अगर इन फेज में हुआ तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। अगर आउट ऑफ फेज में हुआ या फिर नेगेटिव फेज में हुआ तो इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल और ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। सपोज एक एस ऑर्बिटल, अगर ये दो कंबाइन करते हैं तो एक बनेगा लोअर एनर्जी कंटेनिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा बनेगा हायर एनर्जी कंटेनिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बीएमओ, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एबीएमओ। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को हम स्टार देके लिखते हैं और बॉन्डिंग को हम कुछ भी नहीं देते, ऐसे ही छोड़ते हैं, ठीक है। अभी डिटेल में देखेंगे, चलो। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी जैसे इलेक्ट्रॉन से फिल अप होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी इक्वली इक्वली नहीं बोल सकते इसको, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन से फिल्ड अप हो जाएंगे। ओके, ऑप्पा प्रिंसिपल के रूल से, ऑप्पा प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सारे रूल वहाँ पे फॉलो होंगे, ठीक है। अच्छा, तो चलो लेट्स कंटिन्यू। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके उसको जरा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन हम सबको पता है क्या है, H2, राइट। ये H2 बनता कैसे है? दो हाइड्रोजन एटम अगर कंबाइन कर जाए तो H2 बनेगा, राइट। दो हाइड्रोजन एटम अगर कंबाइन कर जाए तो H2 बनेगा। अभी हाइड्रोजन में क्या होता है, 1s1, इसमें भी 1s1, राइट। अभी देखो, एक हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक ऑर्बिटल में एक s ऑर्बिटल है, यानी कि 1s ऑर्बिटल है। दूसरा हाइड्रोजन जिसका भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जो कि एक 1s ऑर्बिटल है, ठीक है। अगर ये दो 1s ऑर्बिटल कंबाइन कर जाए तो कितने सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? इट इज, हाँ सर। बोलो। अगर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर जाए तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं? दो। दो। एक को हम क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग। दूसरे को? एक को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे को? अरे अभी तो बोले थोड़ी देर पहले। किसको याद है, बोलो। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अरे वाह, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर वाला, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अभी मुझे कोई एक बताओ ये चीज कि दो एस ऑर्बिटल अगर कंबाइन करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? देखते हैं किसने पढ़ा है किसने नहीं पढ़ा है। दो एस ऑर्बिटल अगर कंबाइन कर जाए तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? गुंजन बोलो। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तो पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल बनेगा दो एस ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन से। लास्ट दिन मैंने जो पढ़ाया उसको पढ़े भी नहीं, मतलब ठीक से सुना भी नहीं।
तुमने तो इतने बार पढ़ के रखा है क्षितिज। इतनी बार एक ही चीज पढ़ पढ़ के तो तुमको याद होना चाहिए। हमने पढ़ा था लास्ट दिन, अगर दो एस ऑर्बिटल कंबाइन कर जाए तो बनता है सिग्मा बॉन्ड। अगर एक एस और एक पी कंबाइन कर जाता है तभी भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर दो पी ऐसे हेड ऑन ओवरलैप कर जाए तो अभी भी सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। अगर दोनों पी पैरेलली ओवरलैप कर जाए तब जाके पाई बॉन्ड बनता है। ये बाकी सारे के सारे सिग्मा है। ये तो तुमको पता है ऑलरेडी, लास्ट दिन हमने डिस्कस भी किया था। तुम लोग घर में पढ़ाई वढ़ाई नहीं किए, ठीक है। ये जो नीचे फॉर्म हुआ इसको हम बोलते हैं सिग्मा वन एस, ठीक है, सिग्मा वन एस। और ये जो ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं सिग्मा वन एस स्टार। स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है वन एस ऑर्बिटल में। अगर दोनों मिल जाए तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा ऊपर से इसका एनर्जी नीचे से ऊपर तक बढ़ता बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अभी ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएगा। देखो नीचे वाले ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे सेट कर दिया, हो गया। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, दैट इज सिग्मा वन एस टू, खत्म। इसके बाद और कुछ भी नहीं। किसको किसको नहीं समझ में आया अनम्यूट करो माइक्रोफोन और बताओ। अनम्यूट योर माइक्रोफोन। सलोनी समझ में आया? हाँ सर। तुम पढ़े थे लास्ट दिन घर में? सर मैंने बोला ना तभी सिग्मा बॉन्ड। आप कब बोला? सर बोला तो माइक्रोफोन ऑन करके, अभी बोला? जब आपने पूछा ना सर। मैंने तो सुना ही नहीं तुम्हारी आवाज, बाकी किसी ने सुना? तुमने बोला था? अच्छा ठीक है, ठीक है चलो। तो इन जनरल इनका जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, ठीक है, वो मिलते हैं एक साथ, ओवरलैप करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होता है। ओके, अच्छा अभी देखो, ये तो हाइड्रोजन के लिए था, बहुत ही इजी था। अगर कोई हायर एलिमेंट होता है तो उसके लिए क्या होगा? देखो सिंपली हम एज एन एग्जांपल बोरॉन को कंसीडर करते हैं। बोरॉन, ओके बोरॉन को छोड़ दो, हम थोड़ा सा ऊपर ही चले जाते हैं। हम नाइट्रोजन को ही कंसीडर करते हैं। अभी क्षितिज मुझे बताओगे कि नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन में, ठीक है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। कैसा, नाइट्रोजन का सर? अरे हाँ नाइट्रोजन का, और किसका? 1s2 2s2 2p3। 1s2 2s2 2s2 2p3, 2p3। ठीक है। ये हो गया नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अच्छा अभी एक चीज देखो, और दैट इज तो यहाँ पे कितने सारे ऑर्बिटल है? सबसे नीचे होगा 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p। हम लिख दे ऐसे 1s
2s और एक 2p। हो गया, हो गया। एनर्जी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 1s to 2p। ऑब्वियसली जितना ऊपर जाओगे एनर्जी बढ़ेगा। अच्छा, अभी एक चीज देखो, ये एक नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। अभी दूसरे नाइट्रोजन का भी एटॉमिक ऑर्बिटल है ठीक इसी तरह। वन एस टू एस एंड टू पी, राइट। अच्छा अभी देखो, ये दो वन एस अगर कंबाइन करेगा तो कितना सारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा, बोलो। चलो नहीं बोलो। ये दो वन एस ऑर्बिटल अगर कंबाइन हो जाए तो क्या क्या जनरेट होगा, कितना सारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा, वही बोलो। क्या होगा वो ठीक है, वो मैं बता दूंगा, लेकिन तुम बोलो कितना सारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा। ये दो वन एस अगर कंबाइन कर जाए, मतलब ये वन एस और ये वन एस अगर कंबाइन कर जाए तो, ठीक है, बताओ। हेलो नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल अनम्यूट योर माइक्रोफोन। Yes, sir. बताओ। दो वन एस को अगर हम जोड़ दें तो कितना सारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा? Sir, एक एक ही जनरेट होगा। आर यू श्योर? हमने क्या पढ़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी में? पहला चीज, जितना सारा एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उतना सारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो यहाँ पे कितना होगा? दो होगा। two, एक को बोलेंगे बॉन्डिंग, एक को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। तो इसको सिग्मा वन एस बोलेंगे, इसको सिग्मा वन एस स्टार बोलेंगे। स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग। ओके, टू एस में क्या होगा, कितना होगा बोलो? टू एस में Sir, भी two ही होगा। टू ही होगा। एक होगा टू एस बॉन्डिंग, एक होगा टू एस एंटी बॉन्डिंग। अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज है, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद 2p वाला देखो, 2p वाले में कितने सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? गेस करो। गेस क्यों करोगे, देख के बताओ। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे बोलो? टू पी के अंदर कितने सब ऑर्बिटल है? तीन है ना, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो अल्टीमेटली 6 हो गए यहाँ Sir, पे। six, हाँ, 6, 6। तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 3 हो जाएगा बॉन्डिंग में, 3 हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है ना। अभी देखो पी ऑर्बिटल कैसा दिखता है। पी ऑर्बिटल डंबल शेप होता है। अगर ये इसको हमने एक्सिस ले लिया, सपोज इसको हम एक्सिस ले लिए, इसको एक्स, इसको वाई, इसको ले ले जेड, ठीक है। तो एक्स एक्सेस बराबर जो पी ऑर्बिटल होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? पी एक्स बोलेंगे ना। ये एक्स ऑर्बिटल है, सॉरी एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस बराबर जो पी ऑर्बिटल होंगे उसको बोलेंगे पी एक्स, ठीक है। तो पी एक्स अगर कंबाइन हो जाए तो क्या जनरेट होगा? बोलो बोलो बोलो। इसको क्या, कौन सा ऑर्बिटल बोलेंगे, कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, सिग्मा या पाई?
सिग्मा पाई बॉन्ड पाई बोलेंगे। एग्जैक्टली देखो एक और टाइप है यहाँ पे, ये जेड वाला को देखो, जेड एक्सेस। ऐसे ही पीजेड को देखो, ठीक है, ऐसे ही पीजेड को देखो, ये दो पीजेड हो गए, जेड एक्सेस। ओके, अगर ये दोनों कंबाइन हो जाए तो क्या बनेगा? सिग्मा बनेगा या बॉन्ड पाई बनेगा? हाँ, क्या बोले, फिर से बोलो। पाई बॉन्ड पाई बनेगा। पाई बॉन्ड तो हमको दो टाइप के पाई बॉन्ड बन रहे दिख रहे हैं। मतलब क्या हुआ, एक ऐसा ही पाई बॉन्डिंग में जाएगा, एक ऐसा ही पाई एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे पाई 2px, इसको हम बोलेंगे पाई 2pz। ये पाई 2px और पाई 2py कहाँ पे होंगे? ये दो बनेंगे बॉन्डिंग में, दो बनेंगे एंटी बॉन्डिंग में। हो गया हमारा 4, और हमको चाहिए 2। अभी देखो जो पी वाई ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरह का है। अब ये दोनों पी ऑर्बिटल मतलब पी वाई ऑर्बिटल अगर कंबाइन हो जाए तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड पाई बनेगा। बॉन्ड भाई फिर से पाई बॉन्ड। अरे हेड ऑन ओवरलैप में कभी पाई बॉन्ड बना है हाँ आज सर तक? नहीं सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो ये हो गया सिग्मा 2py, राइट। तो देखो दो सिग्मा 2py होगा, एक होगा बॉन्डिंग में और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। এই তুমি কি করতে জয়েন করেছো? মনে সঙ্গে? আমাদের না, হ্যাঁ, ও সরি সরি সরি, আমি ভাবছিলাম এটা আমাদের গ্রুপে দিয়েছো। না এটা সকালেরটা তো, আমি তো মেসেজও দিয়েছি কালকে রাতে, দেখো। ঠিক আছে, তুমি থাকলে থাকতে পারো, অসুবিধা নেই। যদি মনে হয় যে আজকে তো ছুটিও আছে, নাহলে বাড়িতে পড়ো বসে বসে। আচ্ছা, বন্ডিং মলিকুলার, হ্যাঁ কিছু বলছো? না স্যার না স্যার। ओके, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, सी अभी देखो यहाँ पे दो पी ऑर्बिटल हमको दिख रहा है जो कि क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। एक होगा 2px जो एक्सिस हमने कंसीडर किया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम सेइंग। ओके, तो ये एक px हो गया जो सिंपली क्या फॉर्म करेगा? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। एक 2pz होगा जो क्या फॉर्म करेगा? सिंपली पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके, अभी देखो और एक 2py होगा जो कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। दो सिग्मा बॉन्ड होंगे, एक होगा सिग्मा बॉन्डिंग, दूसरा होगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। और दो पाई ऑर्बिटल रहेंगे। तो दो पाई ऑर्बिटल को हम कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे एक पाई ऑर्बिटल हो गया, मतलब दो हो गया बेसिकली, और ऊपर एंटी बॉन्डिंग में भी दो हो गया, ठीक है। अभी देखो ये जो पाई ऑर्बिटल है वो एक ही साथ में रहेंगे, मतलब इनका जो एनर्जी होगा वो सेम होगा। वैसे भी हमने लिखा है ऐसे, बट एनर्जी उनका सेम ही होगा। तो पाई 2px और एक उसके साथ पाई 2pz, ऊपर क्या होगा? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2pz हो गया। अभी एक और चीज देखो क्या होता है अगर हमारे एलिमेंट बहुत छोटा होता है, मतलब उनका जो एटॉमिक नंबर है वो बहुत कम होता है, तो क्या होता है? 2s और 2p के बीच का जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। द गैप बिटवीन 2s एंड 2p इज वेरी लेस। ओके, तो इस टाइम पे क्या होगा? इस टाइम पे क्या होगा? इस टाइम पे सिंपली ये तुमको जो दिख रहा है
सिग्मा 2py और उसके साथ सिग्मा 2s स्टार, इन दोनों के बीच में एक रिपल्शन होगा। ये रिपल्शन नाइट्रोजन में भी होता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये जो सिग्मा 2py है ये ऊपर चला जाएगा, इट विल गो अबव दिस पाई ऑर्बिटल। ओके, तो एज अ रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, एज अ रिजल्ट हमको जो मिलेगा वो होगा कुछ इस तरीके का, ये ऊपर चला गया पाई के ऊपर, क्यों, टू अवॉइड द रिपल्शन। तो सिग्मा 2py, ठीक है। तो कोई अभी मुझे नीचे से देख के ऊपर तक बताओ कि कौन से ऑर्बिटल है। हम लोग नीचे से लेके बीच का जो देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बना, सॉरी, बस इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को तुमको मुझे बताना है। तो कोई एक ये बताओ मुझे, एक एक करके नीचे से बिल्कुल ऊपर तक जाओ। आई एम हेल्पिंग यू आउट। द फर्स्ट वन इज सिग्मा 1s। ओके, सिग्मा 1, उसके बाद सिग्मा आएगा, 1 स्टार, बताते बताते जाओ एक एक करके। सिग्मा 1 स्टार, हाँ, उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2 स्टार, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2py, पाई 2py। सिग्मा 2s स्टार, हाँ, ये तो मैंने मिटा दिया, ठीक है। पाई 2py, ठीक है, पाई 2py, इक्वल्स टू पाई 2pz, पाई 2py इक्वल्स टू पाई 2pz, ठीक है। पाई 2px, पाई 2px, नहीं मेरा सिग्मा सिग्मा 2p, सॉरी क्या है, एक मिनट रुको तो जरा, मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ किया। 2px हो गया पाई में और एक 2pz हो गया, यहाँ पे 2py लिख दिया मैंने गलती से। 2px होगा, 2px होगा ना, y कैसे होगा। उसके बाद बताओ 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 तो बताते जाओ। सिग्मा 2py, राइट, हाँ उसके सर, ऊपर पाई स्टार पाई स्टार 2px 2px इज और इक्वल्स टू पाई स्टार 2p, पाई स्टार 2pz, आखिर में हाँ लास्ट में सिग्मा स्टार स्टार 2py, 2py। ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये है ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल, मतलब जो पहले लिखा उसका एनर्जी सबसे कम है, जो राइट साइड में हम जाते गए मतलब कि एनर्जी बढ़ता गया। ओके, तो ये जो है ये हर किसी मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर मॉलिक्यूल, ओनली फॉर लाइटर मॉलिक्यूल्स, मतलब अप टू नाइट्रोजन ये वैलिड होगा। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन से ऊपर जाए, मतलब ऑक्सीजन ऑनवर्ड्स, अगर हम चीजों को समझे, फॉर हेवियर एलिमेंट्स, तो फॉर हेवियर एलिमेंट्स से क्या होगा, देखो फॉर हेवियर एलिमेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा, ये 2py बस यहाँ पे आ जाएंगे और कुछ नहीं, ठीक है, वहाँ पे रिपल्शन नहीं होगा। लाइटर एलिमेंट में 2s और 2p के बीच में डिस्टेंस कम होता है तो रिपल्शन होता है, तो इसीलिए जो सिग्मा 2py है वो ऊपर चला जाता है। लेकिन हेवियर एलिमेंट में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हेवियर एलिमेंट में क्षितिज बताओ कि इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है या फिर ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल होगा वो कैसे होगा, बताओ मुझे एक एक करके। सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा 1 स्टार, उसके बाद सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा 2s स्टार, बताते जाओ, तुम रुकते क्यों हो। उसके सिग्मा बाद 2px, क्या जाएगा, एरो देखिए मैंने दिखा दिया। हाँ बोलो सिग्मा बोलो बोलो। 2py, सिग्मा 2py, सिग्मा 2py, उसके बाद हाँ पाई 2py फिर x, पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई उसके बाद पाई 2pz, 2pz,
उसके हाँ बाद पाई उसके बाद पाई टू स्टार पी 2px, एक्स उसके बाद पाई स्टार इज इक्वल्स टू पाई स्टार टू पी 2pz, आखिर में सिग्मा स्टार टू पी लास्ट में बस हो गया। तो ये दो हमको याद रखना है, एक हेवियर एलिमेंट के लिए, एक लाइटर सॉरी हेवियर मॉलिक्यूल के लिए, और दूसरा लाइटर मॉलिक्यूल के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही आएगा एग्जाम में अगर आए तो। ओके, अगर आया एग्जाम में तो यही आएगा, मतलब हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। ओके, आया समझ में? तुमको वो डायग्राम जितना मैंने दिखाया अभी तक कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो दोनों मैंने दिखाया अभी, जो बॉक्स के अंदर है, ब्लैक बॉक्स के अंदर है, उनको तुमको किसी भी तरीके से याद रखना होगा। ठीक है? क्यों मैंने दिखाया वो डायग्राम? डायग्राम दिखाया इसलिए क्योंकि सपोज अगर तुम लोग इसे भूल जाओ, किसी तरीके से भूल गए, तो तुम लोग रफ वर्क में वो डायग्राम बना सकते हो, क्योंकि वो डायग्राम इतना इजी, मतलब इतना टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। बड़े ही इजीली यू कैन मेक द डायग्राम एंड यू कैन राइट डाउन दिस। ओके, तो इसीलिए मैंने तुमको दिखा दिया कि कैसे इसको बनाया जाता है। आया समझ में? लेकिन याद तुमको यही रखना है जो बॉक्स के अंदर है। डायग्राम नहीं आएगा पिक्चर में, एनर्जी लेवल डायग्राम जो है, ऐसे ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो नहीं आएगा। बस ये एनर्जी लेवल का जो इशू है, इसको हमको जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि अभी हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ही ले लो, अच्छा बोरॉन ले लो, छोटा मॉलिक्यूल लो, बोरॉन लो B2। ओके, बोरॉन क्या है? बोरॉन एक लाइटर एलिमेंट है, राइट? अभी कोई मुझे एक चीज बताओ कि बोरॉन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो बहुत ही आसान सवाल पूछा है मैंने, बोलो। बोलो, बोरॉन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कौन बोलेगा? फाइव। गुंजन बताओ। हाँ 5 होते हैं। B2 में? टेन। B2 में? बोरॉन में तो 5 है, B2 में कितने होते हैं? बताओ बताओ जल्दी बताओ। टेन। 10। 10 हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी एक चीज देखो, दैट इज कि बोरॉन में तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम कैसे लिखेंगे? क्षितिज बताओ। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s में 2, सिग्मा 2s स्टार में 2, कितना हो गया? 8 कितने इलेक्ट्रॉन हुआ? 8 हुआ। और अब बाकी 2 इलेक्ट्रॉन किधर रखेंगे हम? की 2 इलेक्ट्रॉन सर वो पाई भाई कौन सा? पाई टू पी वाई 2px हाँ एक्स और और पाई टू पी एक्स दोनों ही x हो गया। नहीं वाई y होगा। हमने क्या लिया था? एक्सिस। हमने क्या लिया था? देखो ये जो चीज है ना, ये तुम एक्सिस क्या लेते हो उसके ऊपर डिपेंड होगा, मतलब ये चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा मतलब चेंज हो सकता है, it might change your molecular orbital diagram might not match with the uh, molecular orbital which is written on the book। ओके, देखो यहाँ पे हमने जैसे लिए और लाइटर एलिमेंट 1s स्टार 2s स्टार, उसके बाद हमने 2px लिया, उसके बाद हमने 2pz लिया। ठीक है, तो 2px लिया और 2pz लिया, यहाँ पे भी हम वही लेंगे। ओके, 2px ले लिए और 2pz लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलो कैसे लिखेंगे?
इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास यहाँ पे लिखने के लिए। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को हम कैसे लिखेंगे? सर 1 1 वन वन करके लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वली एनर्जी कंटेनिंग ऑर्बिटल है। इसमें भी वन और इसमें भी वन। ओके, तो हो गया कितना? 2 10 हो गया। 4 6 8 9 10 हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, है ना? तो दिस इज द molecular orbital electronic configuration. Okay, so this is the molecular orbital electronic configuration किसका? बोरॉन का, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है समझ में सबको? Yes. हाँ सर। সবাই বুঝতে পেরেছো? শাগনিক বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. Now we will learn how to write down the bond order. अभी ये बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर के बारे में मैंने पढ़ाया था तुमको कि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि कितना सारा बॉन्ड है इसमें। तो बॉन्ड ऑर्डर कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला इज हाफ इनटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, अभी देखो बॉन्डिंग ऑर्बिटल किसको बोलेंगे? जिसके ऊपर कोई स्टार वगैरह नहीं है। ओके, एंटी बॉन्डिंग कौन सा होगा? जिसके ऊपर एक स्टार है, तो उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। तो ठीक से देखो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग कितना है? 6 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितना है? एक हो गया 1s स्टार, एक हो गया 2s स्टार, बाकी सब तो बॉन्डिंग है ना, हाँ। राइट? नाउ टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? कितने सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? काउंट करो, काउंट करो, काउंट करके बताओ। सर, 6 6 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका? 0 1 1 1 1 हो गया। ठीक है, आया समझ में? आया समझ में? देखो अगर नहीं आया तो बोलो। दो और चीज, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म किसको बोलते हैं? मैग्नेटिज्म किसको मतलब किस टाइप का होता है? यहाँ पे तुमको दोनों ही पढ़ना है। एक होगा पैरामैग्नेटिज्म, एक होगा डायमैग्नेटिज्म। एक होगा पैरामैग्नेटिज्म। अभी क्या है देखो, अगर अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो कि अनपेयर्ड होगा, राइट? अनपेयर्ड, देखो पहला वाला 1s का 2 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके के, 1s स्टार में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 है, 2s स्टार में 2 है, लेकिन 2p में 1 है, 2pz में 1 है। तो क्या हम बता सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है दे आर अनपेयर्ड, राइट? तो इसी तरीके के अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है या फिर रहता है किसमें? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो हम बोलेंगे इसको पैरामैग्नेटिक। ओके, दैट मींस प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मॉलिक्यूल को बनाएगा पैरामैग्नेटिक, तो बड़ी ही
आसानी से हम बोल सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, absence of unpaired electron will make it diamagnetic, right? अभी मुझे एक चीज बताओ, ये बोरॉन क्या है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? कौन बोलेगा? सलोनी बोलो। सलोनी, फर्स्ट ऑफ ऑल अनम्यूट योर माइक्रोफोन एंड सर टेल मी, ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? समझा तो दिया मैंने, डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होगा, तो दिस इज पैरामैग्नेटिक। ओके, तो अभी सिमिलरली हम लोग कार्बन का भी बनाएंगे और देखेंगे, ठीक है? कार्बन में पहले बोलो कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 C2 इन C2 12। 12। तो अभी इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना है। कौन बोलेगा? बोलो, बोलते जाओ एक एक करके, कोशिश करो, बोलते रहो। सिग्मा सर 1 है, लाइटर हैवी एलिमेंट में। नाइट्रोजन तक सभी होगा लाइटर एलिमेंट, नाइट्रोजन के बाद सारे के सारे हेवियर एलिमेंट्स, ठीक है? अच्छा सर। तो बताओ, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s2। सिग्मा 1s2, अच्छा ठीक है, सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा 1s2। ठीक है, उसके बाद सिग्मा 2s2। उसके बाद सिग्मा 2s2। ठीक है, 5px 2 ओके, 2 1 1 1 होगा, अच्छा ठीक है, 1 ही लिखते हैं, चलो। उसके बाद is equals to pi 2p z1। उसके बाद सिग्मा 2p। नहीं गलती कर दी है, देखो 1 1 तो हो गया px और pz में, पाई 2 px और पाई 2 pz में। इसके बाद और एक करके इलेक्ट्रॉन हम इसमें भर सकते हैं, मतलब फिर से +1 और इसमें भी +1, आया समझ में? हर एक ऑर्बिटल में तुम 2 इलेक्ट्रॉन रख पाओगे, ठीक है? लास्ट वाले में, मतलब बोरॉन वाले में, हमने क्यों एक एक करके इलेक्ट्रॉन रखा? क्योंकि देखो, हमको याद है हुन्स रूल, जब हम p ऑर्बिटल को फिलअप करते हैं, सपोज हमको p6 फिलअप करना है, तो हम कैसे फिलअप करते हैं? 1 2 3, उसके बाद 4 5 6, यही तो करते हैं ना, यही तो करते हैं, है कि नहीं? ये सुन लो, p ऑर्बिटल को अगर हम फिलअप करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल को, क्या हम ऐसे नहीं करते? अगर हम p4 लिखते हैं तो क्या हम ऐसे नहीं लिखते? 1 2 3, उसके बाद 4, क्या हम ऐसे नहीं लिखते? हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं इसको। तो सिमिलरली ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उसको भी हमको इसी तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये जो 2 पाई ऑर्बिटल है उनको एक एक करके इलेक्ट्रॉन मिलेगा। उसके बाद अगर और भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये इनको और ऐसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा। तो अल्टीमेटली जस्ट काउंट कि क्या हमने 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए? हाँ सर। दे दिए 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो अभी मुझे बताओ कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बताओ, हाफ इंटू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 8। 8। हाँ 8, हाँ सर। ओके 8।
माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 फोर होंगे। ठीक 4 है, ठीक है, नो इशू। तो हाफ इंटू 8 - 4 क्या 4 होगा ना? 4/2 का मतलब 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। ओके, तो अभी देखो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? डायमैग्नेटिक। एग्जैक्टली, डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, डायमैग्नेटिक होगा। ओके, अभी एक हेवियर एलिमेंट भी कर लेते हैं, चलो। ऑक्सीजन, कितना इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में? 8 हाँ बोलो बोलो बोलो। 16। 8 হবে 16 হবে 16 electron system. Oxygen is a 16 electron system. All right. Now tell me the molecular orbital electronic configuration. बताओ Sigma बता 1 दो। s 2, सिग्मा 1s, sigma 1 s 2, sigma 1 भाई s star इलेक्ट्रॉन 2, बता दो। sigma 1 s अच्छा, star सिग्मा 2, 1s2। sigma 2 s हाँ, उसके बाद sigma 2 s star उसके बाद 2, फिर 2, sigma उसके बाद 2p x, 2px, हाँ 2p 2py, x 2py, 2 y, 2p y, 2py। हाँ हाँ, उसके बाद 2 pi 2p बोलो, y, पहले पाई 2px लिखो, pi उसके बाद 2p पाई 2, 2pz। राइट। अच्छा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 2 4 6 10 12 14 16 हो गया। देखो तो, क्या हमने 16 इलेक्ट्रॉन दे दिए? नहीं सर, नहीं, नहीं दिए। सर 2 मोर सर 2 और और टू भी मोर, है। 2 मोर तो ठीक है, बोल दो कौन सा में होंगे? 5 pi स्टार होंगे ना? 2p, 5 स्टार होंगे ना? हाँ 5 star एक 2p 5 y स्टार 2px होगा x, और दूसरा 5 स्टार 2pz होगा। हाँ राइट। तो क्या अभी हो गया 16 इलेक्ट्रॉन? हाँ सर, अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर बताओ। हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 12, 12। कैलकुलेट कर लिया नहीं तुमने? रुको सर, हाँ, 10 10 10 10, कैलकुलेट किया ठीक से? हाँ सर 10, 2 4 6 8 10। ओके, 10 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग को एक काम करते हैं, एंटी बॉन्डिंग को हम दूसरे कलर से दिखाते हैं। 2 4 5 6 6 6 होगा ना? हाँ एंटी बॉन्डिंग 6 होगा, है ना? हाँ सर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2, व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर? हाफ इंटू 4, 4 हो जाएगा 2। ठीक है। अच्छा, अभी बोलो कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा? डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, हाँ, डायामैग्नेटिक। हाँ सब पेयर आर यू इलेक्ट्रॉन, श्योर? इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है? क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है?
डायमैग्नेटिक कब होता है? डायमैग्नेटिक कब होता है? एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में हम डायमैग्नेटिक बोलते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको तो हम पैरामैग्नेटिक ही बोलेंगे। ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा? पैरामैग्नेटिक। ऑब्वियसली इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे, इसमें भी एक है ऐसे, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस फाइनल जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है, so that's why it is paramagnetic, so it is obviously paramagnetic. ओके, तो क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके का, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तुमको लिखना पड़ सकता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे देना भी पड़ सकता है, और बॉन्ड ऑर्डर तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक तुमको बोलना है। या फिर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है डायरेक्टली, उसमें तुमको कैलकुलेट करके बताना है कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। आया समझ में? अंडरस्टूड एवरीवन? কেউ বুঝতে না পারলে সম্বন্ধে বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার। বাকিরা চলো একটা ছোট্ট জিনিস বাকি আছে, ওটা বলে কেমিক্যাল বন্ডিং শেষ করবো আজকের মতো, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ হাইড্রোজেন বন্ডিং, দ্য লাস্ট টপিক অফ কেমিক্যাল বন্ডিং, হাইড্রোজেন বন্ডিং। Hydrogen bonding. Now, what is hydrogen bonding? Suppose, let's take an example of HF, hydrogen fluoride, or hydrofluoric acid. Okay, ये HF में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन सा एटम लेस नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कोई बता पाएगा? कौन सा एलिमेंट हाइड्रोजन और फ्लोरीन में से कौन सा एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन सा एलिमेंट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है? बोलो, कौन बताएगा? बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, कौन बोलेगा? बोलो, इसका आंसर दोगे? गुंजन, गुंजन बहुत से टाइम से चुपचाप बैठा है, बोलो, बहुत से टाइम से तुम चुपचाप बैठी हो, बिल्कुल बताओ कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन है या फ्लोरीन है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन फ्लोरीन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन। हाँ, फ्लोरीन is more electronegative. So what is the tendency of fluorine? The tendency of fluorine is to drag the electron density of this HF bond, ठीक है, towards itself. मतलब फ्लोरीन अपनी तरफ वो HF जो बॉन्ड होगा, वो HF बॉन्ड यहाँ पे है, तो HF बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है? अभी देखो, इससे क्या होगा? हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन घटेगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो हाइड्रोजन के ऊपर एक डेल पॉजिटिव चार्ज हम लिखेंगे। अगर किसी से इलेक्ट्रॉन चला जाए तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, जैसे कि सोडियम एन एग्जाम्पल, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, मतलब वो एनायन बन जाता है। तो फ्लोरीन के पास भी एक पार्शियली ऐसे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है ना? अभी देखो, ये जो हाइड्रोजन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया पार्शियली, वो हाइड्रोजन अगर किसी दूसरे ऐसे फ्लोरीन या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के सामने आएगा तो क्या होगा? इनके बीच में एक इंटरैक्शन बनेगा ऐसे, ठीक है? और सिमिलरली ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा ऐसे दोनों तरफ। तो ये जो इंटरैक्शन बन रहा है, ये वाला और ये जो चलता जाएगा,
ये इंटरेक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कैसा इंटरेक्शन है? ये वीक वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। ये वीक वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप के होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप के होते हैं। कौन सा? एक को हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरे को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना? एक हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा हो गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम किसको बोलेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है एक ही मॉलिक्यूल में, ओके, या फिर एक ही स्पीशीज के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। फॉर एग्जांपल इसको अगर हम देख लें, इसका नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसका नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। इसमें देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ हो रहा है? ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में। ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो जब ये हाइड्रोजन वो H बॉन्ड का ऑक्सीजन कोई दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन के प्रॉक्सिमिटी में आएगा, तो क्या होगा? उन दोनों के बीच में एक वीक वैंडरवाल्स इंटरेक्शन होगा, जिसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है। और व्हाट अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? दो अलग अलग एलिमेंट के अंदर, या फिर सॉरी अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे कि HF ले लो, HF का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये भी क्या है? ये है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में है। सर सारे एक HF मॉलिक्यूल क्या अलग अलग है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आ गया समझ में? आया समझ में? अगर हाँ है तो बोलो, हाँ सर। अगर ना है तब भी बोलो। आई होप सबको समझ में आ गया। तुमको यही पढ़ना है यहाँ से। एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ आज, उसको करोगे। क्या होगा होमवर्क? ये वाला होगा होमवर्क। फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर, magnetic behavior of uh, He2, okay, Ne2, Be2, F2, ठीक है। ये चार, इनका पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। उसके बाद देखना है कि वेदर दे आर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, और उसका बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट करना है। कर पाओगे? कर पाओगे? कर लेना इसको। आई होप तुम लोग कर पाओगे। अगर किसी डाउट हो तो मुझे तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। कभी भी फ़ोन करके, कॉल करके, या फिर मैसेज तुम डाल सकते हो व्हाट्सएप में।
आई विल आंसर इट। ओके, आ गया समझ में सबको? ओके सर। किसी भी तरीके का कोई डाउट? नहीं सर। नहीं। ओके, और एक और बात, ये जो ऑफलाइन वाला है वो मैं सैटरडे से स्टार्ट करूँगा, ठीक है? आज वेडनेसडे है, आज होना था लेकिन आज नहीं होगा क्योंकि मैं स्कूल में रहूँगा लगभग शाम तक, तो आज पॉसिबल ही नहीं होगा। सैटरडे से हम लोग नॉर्मली जो टाइमिंग होगा उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? मतलब ऑफलाइन वाला टाइमिंग। और एक बात, जब तक हम लोग हाइड्रोकार्बन तक नहीं पहुँचते तब तक ये सुबह वाली बैच कंटिन्यू होगा, ठीक है? आ गया समझ में सबको? सर ऑफलाइन होगा? या मैंने कल लिख दिया था? हाँ बोलो। ऑफलाइन होगा? ऑफलाइन होगा, तुम ऑनलाइन ही पढ़ोगे, ठीक। तुमको तो मैंने बता दिया था। तुम हाँ सर। जो ग्रुप में हो उसका टाइमिंग के हिसाब से ही तुम पढ़ोगे, ठीक है? ठीक है। हाँ। और बाकी सब लोग ऑफलाइन ऑफलाइन होगा, अगर कोई चाहे तो ऑफलाइन आ सकता है, ठीक है? तो ज़्यादातर ही आएंगे ऑफलाइन, तो देखते हैं कहाँ तक जाता है बात, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को ही पढ़ेंगे, सैटरडे को सुबह भी पढ़ेंगे जिसमें बॉन्डिंग डिस्कशन होगा, और शाम को पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है? जो कि नॉर्मली हमारा चल रहा है। ओके, ठीक है, चलो तो आज इतना ही। व्हाट्सएप में मैं भेज रहा हूँ ये पीडीएफ, ठीक है? चलो रखता हूँ अभी। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक एवरीवन। यू सर।